Assalamu alaikum, dear students, welcome to all of you. क्लास 12th इकोनॉमिक्स का हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ लॉ ऑफ सप्लाई. Law of supply states that other things remaining constant, there is a positive relationship between own price of the commodity and its quantity supplied. Law of supply बताता है कि अगर दूसरी चीज़ें जो सप्लाई को इफ़ेक्ट करते हैं, जो हमने देखा था सप्लाई फंक्शन या डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में, जैसे कि प्राइस ऑफ अदर गुड्स या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, या इसी तरह से हमने देखा था प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मार्केट एक्सपेक्टेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी. अगर वो चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं तो लॉ ऑफ सप्लाई स्टेटस कि कमोडिटी की जो अपनी प्राइस है और उसकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है उनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी या उनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप होगी. उसका माना है कि अगर प्राइस इंक्रीज़ होती है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज़ हो जाएगी, अगर प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी. दस मोर इज सप्लाइड एट हायर प्राइस. तो इसका मतलब है कि हायर प्राइस पे ज़्यादा सप्लाई होगी और लेस प्राइस पे लेस सप्लाई होगी. इन अदर वर्ड्स देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी. यानी हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप है कमोडिटी की अपनी प्राइस और उसकी क्वांटिटी सप्लाइड जो है उसके इन दो वेरिएबल्स के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है. The law of supply states that other things remaining constant, quantity supplied increases with increase in own price of a commodity and vice versa. तो लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. अदर थिंग्स मीन्स अदर फैक्टर्स विच इफेक्ट द supply of a commodity, other factors which affect the supply of a commodity. Quantity supplied increases with increase in own price of a commodity. अगर commodity की अपनी प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी एंड वाइस वर्सा. उसका मतलब है कि अगर प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज हो जाएगी. एक्सप्लेनेशन. नाउ वी विल एक्सप्लेन दिस लॉ ऑफ सप्लाई विद द हेल्प ऑफ ए schedule or with the help of a table. Law of supply is explained with the help of table number 3. Law of supply, positive relationship between price and quantity supplied of a commodity. Now you can see in this table that as the price of the commodity increases, quantity supplied increases. Now the price, initially the price of commodity X is rupees 10 per unit. Supply of commodity X is 100 units. Now when the price increases from 10 to 11, quantity supplied increases from 10, 100 to 200. When price further increases from 11 to 12, quantity supplied increases from 200 to 300. Table 3 shows that quantity supplied increases from 100 to 200 units when own price of the commodity increases from 10 to 11 per unit. Likewise, it increases from 200 to 300 units when price increases from 11 to 12 per unit. यानी इसी तरह से हम देख सकते हैं कि प्राइस इंक्रीज जब हो रही है फ्रॉम 11 to 12 रुपीज़ पर यूनिट तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम 200 to 300 यूनिट्स, इंप्लाइंग दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी. तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप है कमोडिटी की अपनी प्राइस और उसकी क्वांटिटी सप्लाइड जो है उसके उनके दोनों की इन दो वेरिएबल्स के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है. फिगर 3 ऑफर्स डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस रिलेशनशिप. लॉ ऑफ सप्लाई. SS is the supply curve. SS slopes upwards from left to right. It shows positive relationship between own price of the commodity and its quantity supplied. SS curve जो है it is a supply curve. It shows positive relationship between price and quantity supplied of the commodity. Now it slopes upwards from left to right. It shows positive relationship between own price of the commodity and its quantity supplied. As price rises, quantity supplied also rises. Now as the price rises from P to P1, quantity supplied also rises from L to L1. Curve, supply curve SS slopes upwards. You can see that the SS curve, which is the supply curve, has a positive slope or it slopes upwards. It shows increase in quantity supplied in response to increase in own price of the commodity. You can see that as the price increases, quantity supplied also increases. Thus, quantity supplied increases from OL to OL1 when price rises from OP to OP1. Now, if we see in the reverse direction, if the initial price is P1, quantity supplied will be is L1. Now if the price falls from P1 to P, quantity supplied declines from L1 to L, yani OL. Thus quantity supplied increases from OL to OL1 when price rises from OP to OP1. अब हम देखते हैं कि इस लॉ
यानी लॉ ऑफ सप्लाई जो है इसके क्या एजम्पशंस हैं, इस लॉ के क्या एजम्पशंस हैं, इन्हें लॉ ऑफ सप्लाई जो है इसके क्या एजम्पशंस, कौन सी चीज़ें हम कांस्टेंट लेते हैं, यानी एज्यूम हम करते हैं. There is no change in price of factors of production. We assume that there is no change in the price of factors of production. Yani we assume that other things remain constant. If the own price rises, quantity supplied will rise. If the own price of the commodity declines, quantity supplied will decline. There is no change in technique of production. We also assume that technique of production remain the same, or the technology of production remain the same. There is no change in the goal of the firm. Goal of the firm remain the same. It does not change. Goal ऑफ द फर्म मीनस जो फर्म के जो सेल से जो या अपने ऑपरेशन या प्रोडक्शन से उसके क्या मकासद हैं, वेदर इट इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उनका मकसद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन है, मार्केट डोमिनेशन है, ये चीज़ इन चीज़ों में जो उनका इनिशियल गोल था वो कांस्टेंट रहता है. देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स जो है उनके प्राइस में कोई चेंज नहीं आती है, उन वो सेम रहते हैं. देयर इज़ नो चेंज इन बिजनेस कॉन्फिडेंस. बिजनेस कॉन्फिडेंस में भी कोई चेंज नहीं आ रही. ये चीज़ें हम एज्यूम करते हैं. A point to be noted on the left hand side आप देख सकते हैं, assumptions of the law of supply refer to all other determinants of supply other than own price of the commodity. Assumptions of the law of supply refer to all other determinants. जो भी बाकी determinants हैं जो supply को determine करते हैं, उन वो सब constant हम लेते हैं या हम assume करते हैं कि ये अपनी जगह पर बने रहते हैं या constant रहते हैं other than own price of the commodity. Thus law of supply holds good on the assumption that other determinants of supply remain constant other than own price of the commodity. तो law of supply उसी वक्त hold करेगा. Hold good means it will be valid only on the assumption when other determinants of the supply remain constant other than own price of the commodity. Only own price of the commodity changes. Exceptions to the law of supply. There are some exceptions to the law of supply where the law of supply does not hold good or it is where it does not remain valid. The positive relationship between own price and quantity supplied of a commodity may not always hold good or may not firmly hold good in certain situations as under. तो ये जो positive relationship है between own price of the commodity and quantity supplied of a commodity, ये कभी कभी valid नहीं रहेगा और ये firmly apply नहीं होगा. The law of supply does not apply strictly to agricultural products whose supply is governed by natural factors. जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि law of supply जो है it does not apply strictly, it does not apply completely to the agricultural products जिनकी supply natural factors से determine होती है. If due to natural calamities there is a fall in the production of wheat, then its supply will not increase. However high the price may be. So for example, if due to natural calamities, due to suppose for example हम देखते हैं कि floods की वजह से या इसी तरह से ड्राउट की वजह से या कोई और नेचुरल कैलेमिटी अगर आती है जैसे कि टाइफून साइक्लोन्स आते हैं किसी एरिया में, अगर इनकी वजह से किसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या प्रोडक्ट की सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारी एग्जांपल है वीट, इसकी प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाती है तो इसकी सप्लाई इंक्रीज़ नहीं हो सकती है अगर इसकी अब प्राइस बढ़ भी जाएगी. तो अगर वीट की प्रोडक्शन कम हो गई है तो मार्केट में अगर उसकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाएगी तो उसकी सप्लाई हम जल्दी इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी जो प्रोडक्शन है इट इज़ गवर्नड बाय नेचुरल फैक्टर्स. तो ये नहीं हो सकता है कि रातों रात या एक हफ्ते में या 10 दिन में या एक महीने में हम वीट ये नहीं ग्रो कर सके. तो ये नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है. अगर इसकी प्राइस अब ज़्यादा भी हो जाएगी तो उसकी सप्लाई जल्दी नहीं बढ़ सकती है. सप्लाई ऑफ गुड्स हैविंग सोशल डिस्टिंक्शन विल रिमेन लिमिटेड इवन इफ देयर प्राइस टेंड्स टू राइज. सप्लाई ऑफ गुड्स हैविंग सोशल डिस्टिंक्शन, वो गुड्स जिनसे एक सोशल डिस्टिंक्शन होती है उनकी सप्लाई लिमिटेड रहेगी अगर उनकी प्राइस क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी. यानी हाई स्टेटस गुड्स जो होते हैं उनकी सप्लाई जो है कम ही रहेगी अगर उनकी प्राइस क्या है, बहुत ज़्यादा है. क्योंकि अगर ये गुड्स सप्लाई में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे मार्केट में तो इनकी जो सोशल डिस्टिंक्शन वैल्यू है, यानी जो ये एक इंसान जो इस चीज़ों को गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन जो इंसान इनको यूज़ करता है, जो इंडिविजुअल्स इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, अगर इनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी इन गुड्स की तो वो दूसरों से अलग नहीं हो सकेगा क्योंकि अब हर एक के पास ये चीज़ होगी, हर एक उसको एफर्ड करेगा. अगर ये हर एक अगर इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो अगर इन जैसी चीज़ों की गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन अगर इनकी प्राइस राइज भी हो जाती है तो उनकी सप्लाई ज़्यादा नहीं बढ़ती है. Otherwise, they would not remain the goods of social distinction. At a given point of time, sellers may be willing to sell more of a perishable commodity even at a lower price. So, for example, कभी कभी ऐसे भी चीज़ें होती हैं जब sellers willing होते हैं कि वो अब लो प्राइस पर भी ज़्यादा यानी बेच देंगे, लो प्राइस पे ही अपनी कमोडिटीज़ को बेच देंगे.
वो ये चीज़ें, ये लॉ जो या इसी तरह से ये रूल जो है अप्लाई होता है मोस्टली पेरिशेबल कमोडिटीज़ पर, जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। आपने देखा होगा कि मोस्टली मार्केट्स में जहाँ पर ये फ्रूट मार्केट्स होते हैं या वेजिटेबल मार्केट्स होते हैं, शाम के टाइम में या इवनिंग के टाइम में इनकी प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है। इवनिंग के टाइम में जो फ्रूट सेलर्स होते हैं, वेजिटेबल सेलर्स होते हैं, वो लो रेट पर भी अपना प्रोडक्ट बेच देते हैं, क्योंकि अब उनको पता है अगर ये रात भर रहेगा या एक और दिन रहेगा तो ये हमें फेंक देना है, तो इसको हमें ये ज़ाया हो जाएगा। तो उसके बजाय वो लोअर प्राइस ही प्रेफर करते हैं कि लो प्राइस पे ही उसको बेच देते हैं। तो यहाँ पर अदरवाइज लॉ सप्लाई कहता था कि अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो ही ज़्यादा बेचा जाएगा, मगर यहाँ पर लो प्राइस पे भी ज़्यादा ये बेचा जाता है, क्योंकि ये पेरिशेबल कमोडिटी, इसको ख़राब होने का ख़तरा है या रॉट होने का ख़तरा है। तो उस वक्त फिर ये मोस्टली अप्लाई होता है ये पेरिशेबल कमोडिटीज़ पे। इसमें हम देखते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसमें आते हैं। तो आप देखते हैं कि इनकी प्राइसेस जो हैं शाम के टाइम या मंडीज़ में या मार्केट्स में कम हो जाती है, गिर जाती है, क्योंकि ये जो सेलर्स होते हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर रात भर हमारे पास ये चीज़ रहेगी तो ये पेरिश हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, तो उसके बजाय ये लो प्राइस पे ही इसको बेच देते हैं। तो अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा मूवमेंट्स अलॉन्ग सप्लाई करूँ एंड शिफ्ट्स इन सप्लाई करूँ।